Hi everyone. Today I want to create an evidence-based strategy or methodology for reports. Now we all know, but somehow we have been ignoring this reports. Reports have started replacing other major areas from where questions used to be asked in RBI examination 2 years, 3 years back. पहले गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था, पीआईबी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था. दैट इज स्टिल देयर, स्पेशली पीआईबी, बट गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस धीरे धीरे कम हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली रिपोर्ट्स पे धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है. हैविंग अंडरस्टूड और रियलाइज्ड कि यार रिपोर्ट्स की रेलेवेंस बढ़ रही है, it's important for all of us, for all the aspirants and also for teachers like me, to make sure कि हमें पता है, that we know how do we actually prepare for reports in advance. In order to be able to do that, it's important that we create a more evidence-based, more scientific, more logical strategy around covering reports. Because otherwise, you will end up just reading some reports, will miss out on a lot of reports, and ultimately will not be able to replicate it in the examination. हमें चाहिए कि हम ये replicate कर सकें एग्जाम में, हम ये अप्लाई कर सकें एग्जाम में. How do you do that? You do that by understanding very clearly what exactly is to be read in reports, how it is to be read in reports, and then how it is to be used in the examination for yourself in order to gain more marks. तो एक एक करके समझते हैं. Towards the end of the session, I would also give you an entire list of reports. ये देखिए पूरी लिस्ट है रिपोर्ट्स की, which is updated as of today. और मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके जब मैं रिपोर्ट सारी डिस्कस करूंगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज रिपोर्ट्स. आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू द एंटायर लिस्ट. वाई? बिकॉज नंबर वन, इट कीप्स गेटिंग अपडेटेड. तो मैं आज आपको दे दूंगा, आप एग्जाम तक इसी को यूज करते रहोगे. You might end up losing out on some reports. Secondly, I want the students who are watching me right now to make some effort to write down these reports names, at least the names, because when you will write it down, you will be able to remember it for a longer time period. आपको उसकी relevance समझ आएगी. खाली ये पेज या पीडीएफ मुझसे ले लोगे, you will dump it somewhere on your laptop, but you will never be able to use it. Therefore, it makes more sense that you note it down when we are discussing it. And don't worry, I will be discussing the names and the relevance of all these reports. There are a lot of reports, and RBI has been asking questions from even less known reports also, and that is why we have to try and be ready. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत बेसिक सिंपल तरीके से आपको एक एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी दे देता हूं, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स के लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आपका काम है टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स. जो मैं लिस्ट नीचे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द लिस्ट दैट यू आर गोइंग टू यूज एज ऑफ टुडे. बट as the exam comes nearer, closer, you will see that the report list also gets updated. But at the same time, when you're reading PIB, when you're reading RBI 247, you will see a lot of new reports being mentioned there as well. उन सबको अपनी लिस्ट में आपको ऐड ऑन करना है, वो बड़ा ज़रूरी है. वो नहीं करोगे तो कुछ रिपोर्ट छूट जाएंगी और फिर चांसेस होंगे कि उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया. सेकेंड स्टेप इज टू स्कैन एवरी रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर. You actually don't have to go through the entire report in order to be able to understand it at first glance. Please do not start reading the report from page 1 and try and finish it in 4-5 days when you start with the reading of reports. Don't do that. अगर ये नहीं करना है तो आपका क्वेश्चन होगा फिर करना क्या है सर. करना ये है कि आपने एक रिपोर्ट उठाई, उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखा. टेबल ऑफ कंटेंट नॉर्मली होता है, नहीं है तो फ्लिप कर करके सारे मेजर हेडिंग्स आपने लिख लिए एक जगह. एंड देन यू ट्राई एंड गिव इट अ स्ट्रक्चर इन योर ओन हेड कि इस पूरी रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस हो रहा है. व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स, मेजर एरियाज दैट द राइटर ऑफ द रिपोर्ट वांट्स मी टू नो. अगर माइग्रेशन के ऊपर रिपोर्ट है तो लेट्स से द रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट कोविड-19 एंड माइग्रेशन. The report is talking about forward migration and reverse migration. The report is talking about forced migration. The report is talking about giving some statistics about migration in India.
द रिपोर्ट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ माइग्रेशन। बहुत सारी चीजें कोई भी एक रिपोर्ट बात करती है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि उस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज दैट रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट, द एंटायर रिपोर्ट, व्हाट इज इट थीम्ड ऑन, एंड अंडर दैट थीम व्हाट द मेजर फोकस एरियाज ऑफ दैट रिपोर्ट। मैंने एग्जांपल आपको माइग्रेशन रिपोर्ट का एक दिया। Spend 1 hour, half an hour, 1 hour on this structure. When you do that, you will automatically realize that your understanding of the report is now already much better, even without having read the report. मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया है कि हाँ रिपोर्ट ये बातें करने की कोशिश करेगी. So now I am more in a predictable territory where I know what the report might bring to me. It's not completely unpredictable or new anymore. I know what the report is going to talk about. उससे बहुत फायदा होता है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है और ऑटोमेटिकली एग्जाम में उसको अप्लाई करने का जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, जो स्किल है वो भी डेवलप होती है. सो दैट इज स्टेप नंबर 2. Before reading any report, whether it's survey, whether it's budget, any report at all, try and give it a structure in your own head or on paper. When you do that, your understanding of the report is already much better. Step number 3. Do not start reading the report immediately. First scan. Now this is a separate step. Why? Because even when we start scanning, we do it for 5 minutes and then we think the scanning is done. Let's get on to reading. Don't do that. Even if you feel, or even when you feel that I'm done with scanning the report, give it some more time. Do it yet another one more time. Do it again. Try and see if you have missed out anything, and you must have missed out something or the other. 200 पेज 400 पेज की रिपोर्ट आप उठा रहे हो, 5 मिनट में वो स्कैन नहीं हो पाएगी. सो योर माइंड विल टेल यू टू स्टार्ट रीडिंग इट इमीडिएटली. वाई? बिकॉज यू आर यूज टू इट. आपको आदत लग गई है कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के इमीडिएटली पढ़ना शुरू करने की. उस स्किल को अनलर्न करने के लिए आपको अपने दिमाग को दोबारा बोलना है, लेट्स नॉट डू इट. लेट्स स्पेंड सम मोर टाइम ऑन creating this new skill of scanning it first. Scan it one more time. Let's give it some time. Let's keep scanning. Let's keep understanding what the structure is all about of this report. Only then I will start reading it. ये करना जरूरी है. Point number 4. Search for its summary और use ChatGPT. अब सारी रिपोर्ट्स पूरी पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 200-300 पेज की रिपोर्ट पढ़ के उसको इंटरनलाइज करके उसके पॉइंट्स याद रखना एग्जाम तक बड़ा मुश्किल काम है. इट्स नॉट इजी. एंड व्हेन यू हैव 60 रिपोर्ट्स, कितने पेज हो गए? 12,000 पेज हो गए आई थिंक. 12,000 पेज खाली रिपोर्ट्स के पढ़कर याद रखना इम्पॉसिबल टास्क. सो व्हाट इज पॉसिबल इज टू क्रिएट अ समरी और टू फाइंड अ समरी. या तो मेरे जैसे टीचर्स के थ्रू आप समरी ढूंढोगे या फिर चैट जीपीटी के थ्रू अपने आप भी बना सकते हो. आपने चैट जीपीटी को पूरी रिपोर्ट दी और बोला इसको चैप्टर वाइज समराइज कर दो, उसको एक प्रॉम्प्ट दिया अच्छा सा, वो करना शुरू कर देगा आपके लिए. थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, आपको कुछ मिला, आपको कम अच्छा लगा, आपने फिर दोबारा दिया, उसने और रिफाइन किया. ऐसे रिफाइन करते करते काफी अच्छी समरी आप बना सकते हो. प्लीज डू दैट, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट यू आर एनीवेज नॉट गोइंग टू रिमेंबर वट एवर यूर रीडिंग. और जो भी पढ़ा है उसको याद नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. उससे अच्छा तो ना ही पढ़ो. ओके, आगे चलते हैं. अब आ जाता है पॉइंट नंबर 5, विच इज द लास्ट स्टेप, लास्ट पॉइंट, विच इज टू क्रिएट समथिंग फॉर रिविजन. देखो मैंने 12,000 पेज पहली बार में लेट्स अज्यूम पढ़ भी लिए. मैंने समरी भी बना ली, उल्टी सीधी जो भी समरी मुझसे बनी, या मैंने किसी की समरी उठाई उसी से पढ़ लिया. दैट ऑल्सो माइट बी टू मच फॉर यू टू रिवाइज. अब 12,000 पेज को 10% में भी कर दिया तो 1200 पेज हो गए. 1200 पेज एग्जाम से पहले पढ़ना पॉसिबल नहीं है. So you can't use that same summary every time for revision. You have to summarize it even further, जिससे कि एग्जाम से पहले मैं रिवाइज कर सकूं. अब सबसे पहली चीज जो होती है एग्जाम में जो पूछी जाती है वो है फैक्ट शीट, मतलब फैक्ट्स. एग्जाम में रिपोर्ट से, सर्वे से, स्कीम से काफी फैक्ट्स पूछे जाते हैं. तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि समरी के थ्रू हमने एक फैक्ट शीट बनाई और उस फैक्ट शीट में हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स वो सब डाल दिए एक जगह सारी रिपोर्ट्स के. तो मेरे पास एक 10, 15, 20, 50 पेज की फैक्ट शीट हो गई. 10-15 पेज में हो जाएगा पूरा. वो फैक्ट शीट मुझे बहुत अच्छे तरीके से देती है इंफॉर्मेशन कि यार ये फैक्ट्स इन रिपोर्ट्स में दिए हुए हैं,
एग्जाम में कोई भी फैक्ट आएगा तो यहाँ से अपने ब्रेन से रिकॉल करना, आपको पूरी रिपोर्ट रिकॉल करने की जरूरत नहीं है. That saves a lot of time, saves a lot of energy. So that is the number one thing that you have to create. जब आप समरी भी पढ़ोगे, समरी से भी एक फैक्ट शीट बनाओ. वो फैक्ट शीट जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक याद नहीं रख पाओगे. That is number one. And then you have two options. Out of these you can pick up any one option. या तो शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, विच इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर किसी ने आपको समरी दी है तो शॉर्ट नोट्स भी खुद बनाओ. But if you're reading the entire report yourself, then you need to summarize it, and summarize करोगे तो short notes बनाओगे. तो वो short notes खुद बना सकते हो if you feel that you have the time and the energy. Second option है आपके पास कि जो भी आपने रिपोर्ट पढ़ी, जो भी उसकी समरी पढ़ी या पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स लिख लो. मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी माइग्रेशन के ऊपर, उसमें 10 सब हेडिंग्स थी टेबल ऑफ कंटेंट में. हर सब हेडिंग का एक क्वेश्चन बन गया. Impact of migration on Indian rural areas, impact of migration on urban areas in India, population pressure on urban areas due to migration, what is reverse migration and forward migration, what is forced migration, different types of migration हो गए. तो ऐसे मुझे कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस मिल गए बेस्ड अपॉन द टेबल ऑफ कंटेंट ओनली. 10 सब डिविजन्स थे टेबल ऑफ कंटेंट में, मैंने 10 या 15 क्वेश्चन बनाए और फिर उनके आंसर या तो खुद लिखे, खुद लिखोगे तो बहुत अच्छा है, या फिर चैट जीपीटी को दे दिए कि यार लिख के दे दो मुझे, मैं ये पढ़ के याद रखने की कोशिश करूंगा. That will automatically make sure that you remember the entire report in a much easier way. Instead of remembering it as statements or paragraphs, you now remember it in the form of questions and answers. आज याद करना आसान है और उसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उसके अराउंड तो उसको आंसर करना भी आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर चुके हो. ठीक है ना. तो ये आपको चीजें करनी है. ये 5 मेजर स्टेप्स हैं, प्लीज इनको याद रखिएगा. डू नॉट फॉरगेट देम, डू नॉट स्किप एनी ऑफ दी स्टेप्स, अदरवाइज खुद का नुकसान करोगे, मेरा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठ रहे हैं स्मार्ट, जो अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम निकाल रहे हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं लिस्ट पे. लेट्स कम टू द लिस्ट ऑफ reports and surveys. As I said earlier also, I don't want to give you this list, not because of greed or anything, but because I want you to pause this video time and again and write the entire list down yourself. खुद लिखो ये लिस्ट को, तभी वो याद होगा, तभी वो एक्चुअली यूजफुल होगा. अदरवाइज इसको अपने लैपटॉप में डाल लोगे, एज आई सेड, यू विल डंप इट समवेयर, यू विल फॉरगेट अबाउट इट, यू विल नेवर बी एबल टू यूज इट, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाया तुमने. ठीक है. अब मैंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है. अगर मैंने किसी रिपोर्ट के आगे 1 लिखा है, दैट मीन्स इट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट. स्किप भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं है. 5 लिखा है मतलब इट्स एन एवरेज रिपोर्ट, जिसकी रेलेवेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. एंड 10 अगर मैंने उसको नंबर दिया है, दैट मीन्स इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कवर्ड फर्स्ट. अब आपको ये दिखेगा कि मेजॉरिटी रिपोर्ट्स, सर्वेज, सब कुछ 10 या 5 तक हैं. 1 बहुत कम रिपोर्ट्स को दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्टर्ड आउट या रिफाइंड लिस्ट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम ही डले हुए हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, जो कि मई 2024 में आई थी लास्ट. अभी एक्सपेक्टेड है कि मई 2025 में आएगी. अगर आती है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब जब तक मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब सबके आगे 10 है. आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम एनुअल रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर रिपोर्ट है. ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. जून में आएगी नेक्स्ट वाली, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगी. फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कम इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस की बात हो रही है इसलिए थोड़ा रेलेवेंस भी है, तो 1 ना देके 5 दिया है मैंने. स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट, अ स्टडी ऑफ बजट, बड़ी इंपॉर्टेंट है. थोड़ी रेलेवेंट कम है. वाई? क्योंकि स्टेट फाइनेंसेस की बात कर रहा है, इसलिए 5 दिया है इंस्टेड ऑफ 10. तो यहाँ पे 5 ही आएगा क्योंकि 5 कंटिन्यू हो रहा है. नेक्स्ट, आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10. आरबीआई रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, 10. नीति आयोग की सारी ही रिपोर्ट्स, मेजर रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. आरबीआई रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 5 दिया है. सेबी की एनुअल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस, आरबीआई में भी सेबी से, और सेबी एग्जाम में आरबीआई रिपोर्ट से, इसलिए इंपॉर्टेंट है. अब ये म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की रिपोर्ट है, इसलिए 1 दिया है, लीस्ट इंपॉर्टेंट. पंचायती राज म्यूनिसिपल से जो भी रिलेटेड है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है.
आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई हैंडबुक ऑन रेगुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम रेगुलेशंस और उत्कर्ष ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें घुस जाओगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने उसको बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी मैंने उसकी रेलेवेंसी थोड़ी कम कर दी है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट डाइजेस्ट व्हाट यू रीड। ओके, ईएसआई रिपोर्ट्स मैंने सारी पढ़ी और मुझे सारी ही इंपॉर्टेंट लगी, कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबको 10 ही मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एंड बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट। नाउ दिस इज इंडिया ओरिएंटेड, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईएमएफ की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक आउटलुक, ये तो इकोनॉमिक आउटलुक ही आ गए मंथली क्वार्टरली वाले, और उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट्स हैं, रिस्क रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रिशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड। आईएलओ की दो रिपोर्ट्स मेजर हैं, मतलब एक तो वो इंटरनेशनल लेवल पे बात करता है कि इंडिया लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे सोशल प्रोटेक्शन, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, सोशल आउटलुक, और फिर इंडिया लेवल पे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अलग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से हैं। यूनिसेफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, यूनेस्को एजुकेशन मॉनिटरिंग, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हर साल आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनुअल सर्वेज में भी ये सारे सर्वेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एजुकेशन पॉलिसी, सेंसस, फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, असर रिपोर्ट जो कि एजुकेशन पे है, आईशे रिपोर्ट अगेन एजुकेशन पे है, फाइनेंस कमीशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी एन ओवरव्यू, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, असूस रिपोर्ट, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये सारी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स थोड़ी सी कम रेलेवेंट है, तो इसको लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से क्वेश्चंस आना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की, जैसे मैंने बोला, सारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट्स हैं, और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये 4 रिपोर्ट्स हैं जिनको मैंने 1 मार्क्स दिए हैं, 1 नंबर, मतलब ये कम इंपॉर्टेंट है बहुत, तो छोड़ भी दोगे तो चलेगा। एआरडी रिपोर्ट्स इन एडिशन टू दी अबव रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट्स तो नहीं पढ़ पाओगे एआरडी के लिए, लेकिन ईएसआई की सारी रिपोर्ट्स एआरडी के लिए पढ़नी है आपको, मतलब नाबार्ड के लिए, और एआरडी की रिपोर्ट्स हैं जो कि नाबार्ड स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए बनी हैं। एग्रीकल्चर सेंसस, नाफिस सर्वे, लाइफ स्टॉक सेंसस, माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, सेंसस 2011, हैंडलूम सेंसस, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। अब बहुत सारी रिपोर्ट थोड़ी पुरानी भी हैं, बट जब उसमें नई रिपोर्ट आएंगी तब नई वाली रेलेवेंट हो जाएंगी। इंश्योरेंस में 2 ही रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिपोर्ट और हैंडबुक ऑन इंडिया इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। ये IRDAI रिलेटेड रिपोर्ट्स हो गई। तो ये पूरी लिस्ट है रिपोर्ट्स की, प्लीज़ इसको फिर से एक बार देख के लिख लीजिएगा, प्लीज़ राइट इट डाउन, नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन योर लैपटॉप। मेक श्योर दैट यू कवर ऑल दीज रिपोर्ट्स वन बाय वन। नहीं करोगे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे, क्योंकि रिपोर्ट्स की रेलेवेंस एग्जाम में डे आफ्टर डे इंक्रीज हो रही है, एंड आई एम वेरी एक्सपेक्टिंग कि इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपोर्ट से शायद पूछे जाएं। If that happens, you need to be ready. You want to be ready to be able to deal with those kind of questions. Okay, that's all from my side. If you have any doubts, you can mention them in the comment section below, or you can reach out to my team. नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9999466225। या तो आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर यू कैन कॉल देम ऑल्सो। एंड मेरी टीम हैज़ बीन स्पेसिफिकली गाइडेड नॉट टू sell the course but to resolve your doubts. So try and get your doubts resolved. Try and communicate with the team. They're professional and they're trained, and they would do whatever is necessary to help you out as a student. Okay, all the best. I'll see you again. Take care. Bye bye. Jai Hind.